Good morning, children. Suprabhat bachcho. Today we will start with the fourth lesson, Sangeet Priya Gadha. In last class, we have completed this third lesson, Murkh Raja, isn't it? We have completed the exercise also. We have completed. I orally taught the question answers also, and this all other exercise also from the textbook I have completed. Okay, so today we will start with the new lesson, Sangeet Priya Gadha. Sangeet Priya Gadha. Part 4, Sangeet Priya Gadha. In this lesson, the story of one donkey it is given. The story of one donkey it is given. Gadha means donkey. Sangeet Priya means the musical donkey. Sangeet Priya means what? The musical. Donkey who loves the singing. Donkey who loves the singing. This is the musical donkey. Sangeet Priya Gadha. So children, here in this lesson, the story of this donkey it is given, and what you know, यहाँ पर एक धोबी मतलब एक गधे की कहानी दी गई है। एक गांव में एक धोबी रहता था, उसके पास एक गधा था और वह गधे का उपयोग कपड़े धोने के लिए करता था। मीन्स फॉर कैरिंग द क्लोथ्स, वह गधे का इस्तेमाल कपड़े धोने के लिए करता था। गधा जितना परिश्रमी, गधा बहुत परिश्रमी था। जितना वो काम करता था उसे उतनी खुराक खाने को नहीं मिलती थी। इसलिए धोबी ने एक बार निश्चय किया कि गधे को रात को खुला छोड़ दिया जाए ताकि वह खेतों में जाकर अपना खाना, अपना चारा ढूंढ कर खा सके। तो उसके बाद धोबी ने उस गधे को रात को खुला छोड़ना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या होता है, एक दिन ऐसे रोज गधे की मुलाकात, एक दिन क्या होता है कि जब वो रात को खाना खाने के लिए जाता है बाहर, तभी उसकी मुलाकात एक गीदड़ से होती है। एक गीदड़ से होती है और गीदड़ से उसकी गहरी मित्रता हो जाती है। गधे की मित्रता किससे हो जाती है? गीदड़ से हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है देखेंगे हम इस पाठ में। So textbook, open your textbook, children. If you have textbook, open your textbook and pencil, and both you have to keep ready, because with pencil you have to write the meanings what I am writing on the board. Very important, children, because by this meanings only you can understand the lesson. Okay, so open your textbook and pencil, page number 16. Open. Okay, shall we start with the new lesson, Sangeet Priya Gadha. Sangeet Priya Gadha. Sangeet means what, children? Music. Priya means what? Our favorite. Priya means what? Favorite. Okay, the musical donkey. Priya means favorite and Sangeet means music. Gadha means donkey. The musical donkey. Donkey. Keep your finger there. First line. किसी गांव में एक धोबी रहता था। किसी गांव में एक धोबी रहता था, मीन्स इन एनी वन विलेज। गांव मीन्स विलेज। एक धोबी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धोबी? यस, स्टार्ट राइटिंग, चिल्ड्रन. इफ यू हैव पेंसिल एंड टेक्स्ट बुक, write in textbook. If you don't have textbook, write in a book so that you can copy when you will get the textbook. All these meanings you have to copy in the textbook. Dhobi. What is the meaning of dhobi? Dhobi means washerman. धोबी मीन्स वॉशरमैन। किसी गांव में एक धोबी रहता था, उसके पास एक गधा था। उसके पास एक गधा था मीन्स ही वॉज हैविंग वन डोंकी। ही वॉज हैविंग वन डोंकी। धोबी गधे का इस्तेमाल कपड़े धोने के लिए करता था। धोबी गधे का इस्तेमाल कपड़े धोने के लिए करता था। मीन्स व्हाट, चिल्ड्रन? धोबी मीन्स व्हाट? वॉशरमैन. He was having one donkey. धोबी गधे का इस्तेमाल. Now what is the meaning of इस्तेमाल? इस्तेमाल. इस्तेमाल means use. इस्तेमाल means what, children? Use.
धोबी गधे का इस्तेमाल कपड़े धोने के लिए करता था. He was using that the washerman. He was using this donkey for what? कपड़े धोने के लिए करता था. धोना means what? To carry. Yes, if you don't know, you write धोने के लिए means what? धोना means to carry. धोना means what, children? To carry. कपड़े धोने के लिए करता था. Gadha means he was using that donkey. That washerman, he was using this donkey for carrying the clothes. Okay. गधा जितना परिश्रम करता था उसे उतनी खुराक नहीं मिल पाती थी. गधा जितना परिश्रम करता था. परिश्रम means what, children? Hard work. परिश्रम means what? Hard work. गधा जितना परिश्रम करता था means how much hard work he was doing, no? उसे उतनी खुराक नहीं मिलती थी. खुराक means what? Daily food. खुराक means what, children? Daily food. खुराक means food. खुराक means food. जितना परिश्रम करता था उसे उतनी खुराक नहीं मिल पाती थी. Means he was not getting that much food to eat. इसलिए गधा बहुत दुबला पतला और कमजोर हो गया था. इसलिए गधा बहुत दुबला पतला और कमजोर हो गया था. फॉर दैट रीजन गधा मीन्स डोंकी. दुबला पतला और कमजोर हो गया था. मीन्स दुबला पतला मीन्स व्हाट? दुबला पतला मीन्स थिन. दुबला पतला मीन्स व्हाट, चिल्ड्रन? थिन. दुबला पतला. दुबला पतला मीन्स व्हाट, चिल्ड्रन? थिन. गधा जितना परिश्रम करता था उसे उतनी खुराक नहीं मिल पाती थी. इसलिए गधा बहुत दुबला पतला और कमजोर हो गया था. कमजोर मीन्स व्हाट? वीक. कमजोर मीन्स व्हाट? वीक. इसलिए गधा बहुत दुबला पतला और कमजोर हो गया था. मीन्स दैट इज व्हाई he was he became very weak. Why? Because he was not, the donkey was not getting that much, how much work he was doing, no, that much food he was not getting. That's why he became very thin and very weak. दुबला पतला हो गया था और कमजोर हो गया था. मीन्स वह बहुत कमजोर हो गया था. मीन्स वह बहुत ज्यादा वीक हो गया था. और दुबला पतला मीन्स थिन. दुबला पतला मीन्स thin. Means he became very thin and very weak because he was not getting enough food to eat. गधे की कमजोर स्थिति को देखते हुए धोबी ने गधे को रात के समय खुला छोड़ना शुरू कर दिया. गधे की कमजोर स्थिति देखते हुए means because he was weak. No, कमजोर स्थिति means weakness. Okay. गधे की कमजोर स्थिति को देखते हुए. स्थिति means situation. स्थिति means what, children? Situation. Means because he became very weak, no? By seeing that situation, धोबी ने गधे को रात के समय means at night, खुला छोड़ना. खुला means what? Open. खुला means what? Open. खुला. खुला means open. खुला छोड़ना शुरू कर दिया. मीन्स धोबी ने उसे खुला छोड़ना शुरू कर दिया. बिकॉज बाय सीइंग दैट डोंकी इज बिकमिंग वेरी वीक, बाय सीइंग दैट सिचुएशन, दैट वॉशरमैन स्टार्टेड टू लीव हिम open in an open place. To whom? To that donkey. And what time? At night. At what time? At night. इसलिए इस स्थिति को देखते हुए धोबी ने गधे को रात के समय खुला छोड़ना शुरू कर दिया. खुला छोड़ना शुरू कर दिया मीन्स व्हाट? ही स्टार्टेड टू लीव हिम इन द ओपन प्लेस. एट व्हाट टाइम? एट नाइट. ताकि मीन्स व्हाट? ताकि मीन्स सो दैट. ताकि मीन्स सो दैट.
ताकि वह खेतों में जाकर खूब सारा चारा खा सके, so that he can eat so much. Chara means what, children? Fodder. Okay, his food, that donkey's food. Chara, fodder. ताकि वह खेतों में जाकर. Now what is the meaning of खेत? You must be knowing खेत. खेत means what? Farm. खेत means what? Farm. ताकि वह खेतों में जाकर खूब सारा चारा खा सके, means because so that he can go in the farm and he can eat more food. So खूब सारा means what? More. खूब सारा means what? More. खूब सारा चारा खा सके means he can eat more food. From where? From the farm. Okay, खेतों में जाकर, in going the farms he can eat so much of food. मालिक से इस तरह की स्वतंत्रता पाकर गधा बहुत खुश हुआ. मालिक means what? Owner. Malik means what? Owner. In 5th standard we have learned this word. Malik means what? Owner. मालिक से इस तरह की स्वतंत्रता पाकर, स्वतंत्रता means what? Freedom. स्वतंत्रता. Freedom. स्वतंत्रता means what? Freedom. मालिक से इस तरह की स्वतंत्रता पाकर means what? To get. पाना means to get. No, that's why पाकर. Getting. Okay. गधा बहुत खुश हुआ. He became happy. Why? Because he got freedom. No. From whom? From his owner. From his master. मालिक means owner or master you can write. Okay. मालिक से इस तरह की स्वतंत्रता पाकर गधा बहुत खुश हुआ. By getting the freedom from his master, he became very happy. Who? Donkey. Why? Because he now that master is keeping him open at the night, because he wants that Gada should go, donkey should go in this farm and he should eat some food, because now donkey is becoming very weak. Now what happens? See, क्या एक गांव में एक धोबी रहता था और वह उसके पास एक गधा था. उसका इस्तेमाल वह कपड़ा धोने के लिए करता था. गधा बहुत परिश्रमी था, लेकिन उसे उतनी खुराक नहीं मिलती थी जितना वह काम करता था. इसीलिए गधे की कमजोर स्थिति देखते हुए उसके मालिक ने एक निश्चय किया कि गधे को रात के समय खुला छोड़ दिया जाए, ताकि वह खेतों में जाकर अपना चारा खा सके. चारा मीन्स व्हाट? हिज फूड. that it's food, donkey's food. Okay, वह उसका गधा अपना खेत में जाकर चारा खा सके. और मालिक से यह स्वतंत्रता पाकर वह गधा बहुत खुश हो गया. इसके बाद क्या होता है हम देखते हैं. वी स्टार्ट विद द सेकंड पैरा. एक रात को गधे की मुलाकात एक गीदड़ से हो गई. एक रात को गधे की मुलाकात एक गीदड़ से हो गई. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गीदड़? यस, गीदड़ means jackal fox. Okay, गीदड़, jackal. एक रात को गधे की मुलाकात एक गीदड़ से हुई. वे दोनों गहरे मित्र बन गए. मुलाकात means what? Meeting. मुलाकात means what? Meeting. Means one night, no, every day he was going, that donkey was going to eat his food at the night. But one night, what happened? One night, that donkey met one jackal. Donkey met one jackal. मुलाकात गीदड़ से हुई. वे दोनों गहरे मित्र बन गए. Now what is the meaning of गहरे? गहरे means deep. गहरे means what, children? Deep. गहरे means deep. वे दोनों गहरे मित्र बन गए. वे दोनों गहरे मित्र बन गए means they both became, mitra means friend, they became friend, deep friend. Okay,
तथा भोजन की तलाश में, तथा मीन्स एंड, तथा मीन्स व्हाट, एंड भोजन की तलाश. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तलाश? तलाश मीन्स search. Talash means what, children? Search. तलाश में, भोजन की तलाश में खेतों में साथ साथ घूमने लगे. भोजन की तलाश में, इन सर्च ऑफ द फूड, खेतों में साथ साथ घूमने लगे. They were roaming together. They were roaming together. Who? The jackal and donkey. खेतों में साथ साथ, साथ साथ means together. घूमने लगे means what? Roaming. घूमने लगे means what? Roaming. If you don't know, you can write घूमने लगे, घूमना, to roam. घूमना, to roam. वे दोनों साथ साथ घूमने लगे. एक बार खेतों में घूमते घूमते वे खीरों के खेत में पहुंच गए. एक बार खेतों में घूमते घूमते वे खीरों के खेत में पहुंच गए. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ खीरा? खीरा मीन्स कुकुम्बर. खीरा, खीरा मीन्स कुकुम्बर. एक बार खेतों में घूमते घूमते वे खीरों के खेत में पहुंच गए. पहुंच गए मीन्स व्हाट? रिच्ड. पहुंच गए मीन्स रिच. एक बार खेतों में घूमते घूमते वे खीरों के खेत में पहुंच गए मीन्स while roaming, night they were roaming together, no? Who? Donkey and that jackal. In one time what happened? One time when they were roaming in the for food from here and there in the farm, one time they reached one cucumber farm. Where they were reached? One cucumber farm. That's why it is given. एक बार खेतों में घूमते घूमते वे खीरों के खेत में पहुंच गए. वे खीरों के खेत में घुस गए. वे खीरों के खेत में घुस गए. घुसना मीन्स टू एंटर. घुस गए. घुस गए मीन्स एंटर. घुस गए मीन्स एंटर. वे खीरों के खेत में घुस गए और जी भर के खीरे खाए. और जी भरकर खीरे खाए. जी भरकर मीन्स व्हाट? जी भरकर मीन्स जब तक उनका पेट नहीं भरता तब तक. जी भरकर मीन्स व्हाट? टिल दे गॉट सेटिस्फेक्शन, अप टू देयर सेटिस्फेक्शन. जी भरकर मीन्स व्हाट? टिल सेटिस्फाइड दे गॉट सेटिस्फेक्शन. जी भरकर खीरे खाए. एक वे खीरों के खेत में घुस गए. जब वह खीरों के खेत में पहुंचते हैं वे खीरों के खेत में घुस जाते हैं और खीरे खाते रहते हैं जब तक उनका पेट नहीं भरता. जी भरकर मीन्स व्हाट? टिल दैट their stomach is filled, they got satisfaction. Till that time they were eating the cucumber. रात के घने अंधकार में उन्हें किसी ने देखा नहीं. घने अंधकार में. अंधकार मीन्स व्हाट चिल्ड्रन? यू नो नो, अंधकार मीन्स darkness. And घने, घने means what? Dense. Means very dark. The darkness was very dense. Okay. Ghana. Ghana means घने. Means dense. And andkar. Andkar means darkness. Darkness. Okay. रात के घने अंधकार में उन्हें किसी ने देखा नहीं. Means in the darkness, no one saw both of them because it was very dark. No, very dark. घना अंधकार means very dark. It was very dark. That's why no one was able to see that both of them. Who? Jackal and that donkey, because they were eating the cucumber, no, in cucumber farm. But in darkness, no one was able to see them. No one saw them. Okay. जी भर के खीरे खाए और रात के घने अंधकार में उन्हें किसी ने नहीं देखा. This completes our second para. Now we'll move to the third para. Keep your finger, children. उस रात के बाद वे दोनों
खीरों के खेत में रोज जाने लगे। उस रात के बाद, आफ्टर दैट नाइट व्हेन दे एट कुकुम्बर, सो मच ऑफ कुकुम्बर टिल दे गॉट सेटिस्फेक्शन, नो, आफ्टर दैट नाइट वे दोनों खीरों के खेत में रोज जाने लगे। रोज मीन्स एवरी डे। दे वर गोइंग एवरी डे इन द कुकुम्बर फार्म। They were going every day. After that night, they were going after every day in that cucumber farm. Rose means what? Every day. वहां जाकर वे जी भरकर खीरे खाते और चुपचाप खेत से बाहर निकल आते। वहां जाकर वे जी भरकर खीरे खाते। After going there, no, they both of them जी भरकर खीरे खाते। They were eating so many cucumbers till they got satisfaction. एंड और चुपचाप खेत से बाहर निकल जाते थे। चुपचाप मीन्स व्हाट? साइलेंटली। चुपचाप मीन्स व्हाट? साइलेंटली। I'll write on the board, but first complete this meaning, children. If you still didn't complete this meanings. I'll read once. Dhobi, dhobi means washerman. Istemal means use. Istemal means what? Use. Dhona, to carry. Khurak means food. Dubla patla, thin. Kamzor, weak. खुला, ओपन, ताकि, सो दैट, चारा, फॉडर, खेत, फार्म, मालिक, ओनर, स्वतंत्रता, फ्रीडम, गीदड़, जैकल, गहरे, डीप, तलाश, सर्च, घूमना, टू रोम, खीरा, कुकुम्बर, पहुंच गए, रिच्ड, घुस गए, एंटर्ड, घने, डेंस, अंधकार, डार्कनेस। ओके, कंप्लीट दिस। Okay, completed, children? चुपचाप मीन्स साइलेंटली। जी भर के खीरे खाते और चुपचाप खेत से बाहर निकल आते थे। बाहर निकलना मीन्स दे वर कमिंग आउट। ओके, निकलना, टू कम आउट। ओके, चुपचाप। चुपचाप मीन्स साइलेंटली। चुपचाप, साइलेंटली। चुपचाप खेत से बाहर निकल आते थे। खीरे खाकर गधा कुछ ही दिनों में मोटा तगड़ा हो गया। खीरा खाकर गधा कुछ ही दिनों में, आफ्टर ईटिंग दैट कुकुम्बर, नो, that he was very, that donkey was very weak. After eating that, it became very fat. मोटा तगड़ा means what? Fat. मोटा तगड़ा हो गया था। वो खीरा खाकर गधा कैसा हो गया था? मोटा तगड़ा means fat. मोटा तगड़ा मीन्स व्हाट? फैट एंड हेल्दी। कुछ ही दिनों में मोटा तगड़ा हो गया। उसकी चाल में भी मस्ती आ गई थी। उसकी चाल में भी मस्ती आ गई थी। चाल मीन्स व्हाट? मूव। चाल मीन्स व्हाट? मूव। You learned this in मूर्ख राजा। चाल, ट्रिक, मूव, हियर मूव। उसके चाल में भी मस्ती आ गई थी मीन्स इन हिज मूव वी कैन सी द फन। मस्ती मीन्स व्हाट? फन। मस्ती, मस्ती मीन्स फन। मस्ती मीन्स व्हाट, चिल्ड्रन? फन। उसकी चाल में भी मस्ती आ गई थी। इन दैट, इन इट्स मूव वी कैन सी द फन because he became very fat, no? Now in his move also we can see the fun. He was eating the daily cucumber. That donkey was eating the daily cucumber. That's why donkey became very fat. Okay, and उसकी चाल में भी मस्ती आ गई थी। Now we'll move to the fourth para. रोज की तरह
एक शाम को दोनों मित्र खीरे खाने के लिए खेत में घुसे। रोज की तरह मीन्स व्हाट, लाइक एवरीडे। रोज की तरह मीन्स व्हाट, लाइक एवरीडे। एक शाम को, शाम मीन्स व्हाट, इवनिंग। शाम मीन्स व्हाट, इवनिंग। रोज की तरह लाइक एवरीडे, एक शाम को, वन इवनिंग, दोनों मित्र, टू फ्रेंड्स, खीरे खाने के लिए, टू फॉर ईटिंग द कुकुम्बर, खेत में घुसे। they both entered in the farm. Like every day, one day, they entered into the farm to eat the cucumber. One evening. गधे ने गीदड़ से कहा, that evening, no, what happened? गधे ने गीदड़ से कहा, donkey told to that jackal. What he told? आओ पहले जी भरकर खीरे खाएं और फिर चांदनी रात में मस्ती मारे। आओ पहले जी भरकर खीरे खाए। That donkey tells to that jackal, what he tells? See here, आओ पहले जी भरकर खीरे खाए means come. आओ means come. Let us पहले जी भरकर खीरे खाए. First we will eat the cucumber till we are getting satisfaction. और फिर चांदनी रात में, after that, और फिर चांदनी रात में मस्ती मारे। चांदनी रात, what is the meaning of चांदनी रात? चांदनी रात means moon night. चांदनी रात means what, children? Moon night. चांदनी रात, पूर्णिमा कहते हैं ना उसे हम, पूनम पूर्णिमा, चांदनी रात, दैट इज चांदनी रात। चांदनी रात, फुल मून नाइट, मून नाइट। चांदनी रात में मस्ती मारे। मस्ती मारे मीन्स व्हाट? we will do the fun. After eating the cucumber, we will do the fun. मस्ती मारे means do the fun. फिर दोनों ने खूब खीरे खाए। फिर दोनों ने खूब खीरे खाए means after that they both eat so many cucumber. खूब means so many, and खीरे खाए means they both ate so many cucumber. गधे ने और दिनों से ज्यादा खीरे खाए। गधे ने और दिनों से ज्यादा खीरे खाए। That donkey he ate so many cucumber, more cucumber than what he was eating every day. The donkey ate more cucumber than what it was eating before every day. Understood? गधे ने और दिनों से ज्यादा means more खीरे खाए। खीरे खाने के बाद गधे ने गीदड़ से कहा, खीरे खाने के बाद गधे ने गीदड़ से कहा, after eating that cucumber, no, गधे ने गीदड़ से कहा, after eating that cucumber, again that donkey tells to that jackal, what it tells, see here, प्यारे भतीजे, प्यारे भतीजे, प्यारे means loving, okay, dear, प्यारे means what, dear, भतीजे, भतीजा means nephew, भतीजा, means nephew. प्यारे भतीजे, देखो ना, means why प्यारे भतीजे? Because that jackal, he was calling that donkey चाचा जी, and that's why that donkey it was calling that jackal भतीजा. Okay, प्यारे भतीजे, देखो ना चांदनी रात कितनी सुहावनी लगे। प्यारे भतीजे, डियर नेफ्यू, देखो ना कि चांदनी रात कितनी सुहावनी लगे। दिस मून नाइट, नो, कितनी सुहावनी, सुहावनी मीन्स ब्यूटीफुल, लगे मीन्स हाउ it is beautiful, how beautiful this moon night is. सुहावनी, लगे means it is looking, लगे means what, it is looking, and सुहावनी means beautiful, सुहावनी, beautiful. सुहावनी मीन्स ब्यूटीफुल, कितनी सुहावनी लग रही है। ऐसी सुहावनी चांदनी रात में कुछ खास मनोरंजक कार्य करना चाहिए। ऐसी सुहावनी चांदनी रात में इन दिस ब्यूटीफुल मून नाइट कुछ खास मनोरंजक कार्य करना चाहिए। मनोरंजक कार्य, कार्य मीन्स व्हाट चिल्ड्रन? वर्क, एंड मनोरंजक मीन्स व्हाट? एंजॉयबल। मनोरंजक मीन्स व्हाट? enjoyable. मनोरंजक,
मनोरंजक means enjoyable. And karya. If you don't know, you write there. Karya means work. Karya means work. ऐसी सुहावनी चांदनी रात में कुछ मनोरंजक कार्य करना चाहिए. In this beautiful moon night, we have to do some special enjoyable work. ऐसी सुहावनी चांदनी. What? Who is telling this sentence? Gada. For who? To whom he is telling? For that jackal. प्यारे भतीजे, देखो ना चांदनी रात कितनी सुहावनी लगे रही है. ऐसी सुहावनी चांदनी रात में कुछ खास मनोरंजक कार्य करना चाहिए. Means we have to do some enjoyable work. मेरा तो जी चाहता है कि मैं खुलकर गाना गाऊं. मेरा तो जी चाहता है कि मैं खुलकर गाना गाऊं. गधा कहता है कि मेरा तो जी चाहता है. जी चाहता है मीन्स व्हाट? आई वांट इट. चाहना मीन्स टू वांट. चाहना मीन्स व्हाट? To want. जी चाहता है means my heart wants to sing the song. खुलकर. खुलकर means I want to sing the song openly here in open place. मेरा तो जी चाहता है. जी चाहना means want. Okay. जी चाहना. जी चाहता है. चाहना means to want. चाहना means want. मेरा तो जी चाहता है कि मैं खुलकर गाना गाऊं. गधा कहता है कि मेरा जी चाहता है. I want to sing in the open place. Who tells this? That donkey. To whom? That jackal. Again I'll repeat what the donkey was telling. प्यारे भतीजे, देखो ना चांदनी रात कितनी सुहावनी लगे रही है. ऐसी सुहावनी चांदनी रात में कुछ खास मनोरंजक कार्य करना चाहिए. मेरा तो जी चाहता है कि मैं खुलकर गाना गाऊं. मेरा तो जी चाहता है कि मैं खुलकर गाना गाऊं. और उसके उत्तर में अब गीदड़ क्या कहता है हम देखेंगे. गधे की बात सुनकर गीदड़ ने डरते हुए कहा. गधे की बात सुनकर गीदड़ ने डरते हुए कहा. मीन्स बाय स्केयर, बाय फियर. After listening what the donkey is telling, no, he got scared. Who? That jackal. And डरते हुए कहा. By fear he told that jackal told that donkey. What that jackal told? See here. मेरे प्यारे चाचा जी, गाना तो बिल्कुल मत गाना. मेरे प्यारे चाचा. चाचा means what? Uncle. चाचा means what? Uncle. मेरे प्यारे चाचा जी, गाना तो बिल्कुल मत गाना. माय डियर अंकल, गाना तो बिल्कुल मीन्स फुल, एब्सोल्युटली. जी गाना तो बिल्कुल मत गाना मीन्स नॉट एट ऑल. यू डोंट सिंग एट ऑल. ओके. गाना तो बिल्कुल मत गाना. यू डोंट सिंग एट ऑल. गाना तो बिल्कुल मत गाना. अगर क्या होगा अगर गाना गाया तो? इफ यू विल सिंग व्हाट विल हैपन? अगर तुमने गाना गाया तो किसान को हमारा पता चल जाएगा. अगर तुमने गाना गाया, इफ यू विल सिंग, देन व्हाट हैपेंस? किसान मीन्स व्हाट? यू नो. किसान मीनिंग फार्मर. किसान को हमारा पता चल जाएगा मीन्स he will get to know where we are. He will trace us. Who? That farmer. If you will sing, that farmer can trace us. Okay. He will come to know where we are. So अगर तुमने गाना गाया तो किसान को हमारा पता चल जाएगा. वह हमें पकड़कर हमारी पिटाई कर डालेगा. वह हमें पकड़कर मीन्स पकड़ना, टू कैच. पकड़ना मीन्स व्हाट? टू कैच. वह हमें पकड़कर हमारी पिटाई. पिटाई मीन्स व्हाट? बीटिंग. पिटाई मीन्स व्हाट? बीटिंग. पिटाई मीन्स टू बीट. Means if you will sing in the farm, he will come to know where we are, and he starts beating us. Means he will beat us. That farmer will beat us because we are eating cucumber of the farm, no, of that farmer. हमें पकड़कर हमारी पिटाई कर डालेगा. अतः means I told before so many times. अतः means what? Therefore. अतः means what? Therefore. अतः भगवान के लिए गीत गाने की बात तो मन से निकाल दो. अतः भगवान के लिए मीन्स फॉर द गॉड सेक.
ओके, भगवान के लिए गीत गाने की बात, what you are talking about to sing the song, no, that you have to take from your mind, take out this thought from your mind. Which thought? To sing the song in the open place. Who is telling this? That गीदड़. कौन कहता है यह? गीदड़. गीदड़ क्या कहता है? भगवान के लिए तुम यह बात दिमाग से निकाल दो कि गाना गाना है. क्यों? क्योंकि अगर तुमने गाना गाया तो किसान को हमारा पता चल जाएगा, वह हमें पकड़कर हमारी पिटाई कर डालेगा. इसीलिए भगवान के लिए गीत गाने की बात तो मन से निकाल दो. यू टेक आउट दिस थॉट फ्रॉम योर हार्ट, फ्रॉम योर माइंड. मन मीन्स माइंड और हार्ट, यू कैन टेल. Okay, you have to take out this thought to sing a song from your mind. Understood up to this story? See what गधा कहता है कि मुझे गाना गाना है, उससे कुछ मनोरंजक कार्य करने की सूझी, इसलिए वह कहता है कि मुझे खीरे खाने के बाद मुझे मेरा मन हुआ है कि इस चांदनी रात में कुछ गाना गाया जाए. लेकिन तब गीदड़ डर गया और कहता है गधे से, चाचा जी गाना तो बिल्कुल मत गाना, अगर तुमने गाना गाया तो किसान हमें पकड़कर हमारी पिटाई कर डालेगा. इसीलिए भगवान के लिए गाना तो बिल्कुल मत गाना, और गाना गाने की बात तो अपने दिमाग से निकाल दो. So understood this much story, children? Next part of the story, no, we will do in the next class. So till that time you have to read again this story. इसमें क्या होता है? गधा होता है, उसके बाद गधे की मित्रता एक गीदड़ से होती है. वे दोनों रोज खेत में जाते हैं. एक बार वह खीरे के खेत में घुस गए और रोज खीरे खाने लगे जब तक उनका पेट नहीं भरा. और उसके बाद उस दिन के बाद वह रोज खीरे के खेत में आते थे और रोज रात को खीरे खाने के लिए खीरे खेत में आते थे. खीरे खाने के बाद वह गधा बिल्कुल मोटा तगड़ा हो गया था और उसकी चाल में भी मस्ती आ गई थी. एक शाम को जब दोनों खीरों के खेत में जाते हैं तब गधा कहता है कि आज हम सबसे पहले जी भर के खीरे खाते हैं और उसके बाद हम कुछ मनोरंजक कार्य करते हैं. और मेरा मन होता है कि इस चांदनी रात में गाना गाओ. तब गीदड़ डर जाता है और डरते हुए गधे से कहता है कि गाना तो बिल्कुल मत गाना, अगर तुमने गाना गाया तो किसान हमें पकड़ लेगा और हमारी पिटाई कर डालेगा. लेकिन उसके बाद क्या होता है? क्या गधा गीदड़ की बात सुनता है या गाना गाता है? वह देखेंगे हम अगली कक्षा में. तो so that till that time you have to read this half of the lesson and other part of the lesson I will teach in the next class. Okay children, thank you.